नन्हे नन्हे जैसलमेर। आज मैं आपको मिलवाऊंगा नन्हे जैसलमेर की पूरी टीम से और साथ में बताऊंगा उनके कुछ सीक्रेट्स। आपने नन्हे जैसलमेर के बारे में कैसे सोचा? एक्चुअली ये कहानी कहीं से इंस्पायर्ड नहीं है, इट्स फ्रॉम अ रियल एक्सपीरियंस। अजमेर रुका था मैं कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के पास, और वहाँ पर मेरे को पता चला कि जैसलमेर में आज भी कुछ बच्चे हैं जो रियल कैमल बॉयज़ हैं। वो 3-4 भाषाएं बोल लेते हैं लेकिन उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। और वहाँ पर मेरे को आइडिया है कि कैसा अगर ऐसा हो कि अगर एक बच्चा है जो 3-4 भाषाएँ बोल लेता है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, पर उसका सबसे अच्छा दोस्त एक फिल्म स्टार हो, तो कहानी क्या होगी? At the story, at the way it moved, and it almost brought tears to my eyes, which I tried to control when I was listening to it. वो मेरा दोस्त है, देख कितने प्यार से पकड़ा And है it was मुझे। quite interesting because it does not try to preach you, but it does leave a mark and tries to make you realize what your faith and your imagination, the power it has. So it was pretty interesting. Nannhe Jaisalmer has a simple, nice story. Based on the two best friends. Yeah, two best friends, just two people just having Fun. fun and a lot of friendship. I thought that also between a big man and a small child. Mr. Superstar and a camel boy. Yeah, camel boy. आप दोनों का रिलेशनशिप एक लेवल में है। मैं बेस्ट कैमल बॉय, वो बेस्ट एक्टर। हमारी दोस्ती का एक लेवल है, मैं बेस्ट कैमल बॉय और वो बेस्ट एक्टर। जब मेरी बॉबी से बात हुई, उसको मैंने कहानी सुनाई, उसको अच्छी लगी। इट्स एक्सपेरिमेंटल, द स्क्रिप्ट इज गुड एंड बॉबी बिलीव्ड इन इट एंड ही वाज प्लेइंग हिमसेल्फ, ही इज प्लेइंग बॉबी डियोल इन द फिल्म। I really liked it, but I was a little confused because I had not done any film which was not completely mainstream kind of subject. But I was very confident when I heard the script, so I wanted a better advice. So I spoke to my brother and he said, fine, let me hear it. And suddenly after a few hours, my brother came up to me and he just said, you're doing it. I said, I knew I liked the film, but I couldn't believe the way he reacted to it. And I guess my judgment was kind of right, so that's how it happened. Bobby, of course, is a total pro, right? He's a seasoned actor. He's been acting so long. But the best thing I liked about him in this film was that he was reacting so nicely to you, so positively. He was not making you feel uncomfortable anywhere. You know, he was always trying to help you out or trying to support you. First, I think when you're working with Bobby, you must have felt a little कि oh Bobby के साथ काम कर रहा है. ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? नहीं. Normal like. Normal. But he also treated you very like a friend. Yeah, like a friend, हाँ. like an actor like. Yeah, not like an actor. That was very positive the way he was reacting to you. अब मैं आपको मिलाता हूँ मेरे एक और खास दोस्त है, खमागनी द्विज। खमागनी, बॉबी अंकल के साथ काम करना कैसा लगा? बॉबी अंकल वो बहुत स्वीट है वैसे, और दिल से भी बहुत अच्छे हैं। जब मुझे पता चला कि वो मेरे दोस्त का रोल बॉबी अंकल कर रहे हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मेरे फ्रेंड्स को भी बताया मैंने, और मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हो गए थे। आपको कैसे लगा द्विज के साथ काम करने के लिए? सुपर्ब। अगर मैं पिक्चर बना सकूं बच्चों के ऊपर तो मैं द्विज को ही लेके फिल्में बनाता हूँ, बिकॉज द्विज इज एन एक्टर हु लिसन्स, executes what you want and knows when you're not satisfied. And the best thing is कि द्विज को जब मैंने पहली बारी देखा और उसके साथ बात करी, द्विज क्या कर रहा हूँ मैं, इट्स यू ओनली ना। हाँ, तो ये डोंट कंफ्यूज मी लाइक दिस। जब पगड़ी पहनी और ये बंडी पहनी और ये पहना ना, एंड यू वॉकड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग, ऐसे ये आ गया नन्हे जैसलमेर ऊँट के साथ जब वो शॉट लिया था हमने। खमागनी, Dwij is marvelous. He's superb in the film. He is, I mean, he steals your heart with his performance, and that's what it is. You know, he's very natural. Though he was, in many times when we were doing a scene, he'd remind me of Sameer Karnik talking to me in that little shape and size.
छोटे बच्चे और एनिमल्स के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। इस फिल्म में तो दोनों ही है। आपने कैसे मैनेज किया? मुझे एनिमल ठीक लगा, पर वो छोटे बच्चे जो था वो थोड़ा गड़बड़ था। बट यू आर अ डिलाइट टू वर्क विद। तुम जैसा छोटा बच्चा से मैं कभी काम ही नहीं किया है। उस दिन इफ यू रिमेंबर हम लोग नाइट शूटिंग कर रहे थे ना, बाय द टाइम आई वाज वेरी टायर्ड, आई रिमेंबर, एंड देन यू केम, विनोद अंकल आई एम रेडी। हम लोग सब थका हुआ था, एंड सडनली सीइंग यू सो cheerful and bright, थकावटी मैं पूरा भूल गया। Then you went around telling everybody, चलो काम करते हैं वो। Not only you were good in acting, you are boosting the morale of the whole unit. But I remember you doing the whole scene in one take, and that first take was okay and perfect. That is the moment I'll never forget in my life. मैं सोच रहा कि मैं भी तुम्हारी जैसी हेयरस्टाइल रखूं। रहने दे, तेरी शक्ल तो बंदर जैसी दिखती है। जीजा, जब मैं बाल गीले करके उल्टे रखता हूँ ना, तब माँ कहती है मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ। आपका क्या एक्सपीरियंस था विनोद अंकल के साथ काम करने? माइंड ब्लोइंग। जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई तो मैं उनके पास आया, बोला सर मेरा नाम समीर कार्निक है और मैंने एक स्टोरी लिखी है, फर्स्ट ड्राफ्ट है, अगर आप इसे पढ़ लें और अगर आपको अच्छी लगे तो आई वुड लाइक यू टू डू द फिल्म। स्क्रिप्ट छोड़ी, एक दिन हो गया कोई जवाब नहीं आया, घबराहट। दूसरा दिन हो गया कोई जवाब नहीं आया। थर्ड डे मैंने फ़ोन किया, वैसे सर अगर आपको मौका मिला स्क्रिप्ट पढ़ने का, तो ही सेड नहीं मैं बताता हूँ। उसी दिन शाम को एक मैसेज आया, बुक द कैमरा प्लीज, एंड इट इज़ अ गुड मोमेंट, आई कांट फॉरगेट दैट। We were really glad that Binod ji was the cameraman because he makes the film look even bigger than what it is. वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे। वो मुझे सीन समझाते थे, बाद में कहाँ पे वो मार्क है वहाँ पे जब रन कर रहा हूँ मैं तब वहाँ पे रुकना है, तो वहाँ पे वो अच्छे से समझाते थे ये तुम्हारा मार्क है, जब भागोगे तब वहाँ पे रुकने का। Samir basically I think is a very nice, warm human being, but he gives you so much space that you have to think more because of that. But at the same time, it's a more enjoyable experience because you're doing something and contributing more to the film than just pointing the camera and shooting. He gives a lot of positive vibes. I think probably not just to me, but to everybody he comes across. I guess it was good because I'm already doing 2 more films with him, so I guess it was a good experience. No, he's a very emotional person, and he writes himself, and that's really important for a director to be able to write what he wants to create. फर्स्ट दिन जब मैं समीर अंकल के पास गया था तब मुझे लाइंस याद नहीं थे पर एक्सप्रेशंस अच्छे थे, इसलिए उन्होंने मुझे वापस बुलाया। जब सेकंड डे वापस गया तो उन्होंने मुझे 2-3 सीन्स दे दिया। मैं वापस घर गया, उनको लर्न करके वापस आ गया उनके पास, और फिर सब कुछ अच्छे से हो गया और उन्होंने मुझे नन्हे जैसलमेर के रोल के लिए सिलेक्ट कर दिया। कितने दिनों के बाद I found a wonderful friend in Samir Karnik. We could relate to him. 40 मिनट मेरे को बोला ये नन्हे जैसलमेर है, अभी इसके बारे में तुझे सोचना है। Then when I went on the set and I saw you walking in this lovely outfit, and when you walked I knew exactly who नन्हे जैसलमेर was. ये मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, मिल के आऊं? मेरे नन्हे यार। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.